Good morning students, welcome to all of you to our next video. Okay, so in the last video we are discussing about the batch processing operating system, multi-programming operating system, multi-processing operating system. Okay, with their advantage, disadvantage, all are we are discussing. But today we are going to discuss about another types of operating system, that is our time sharing operating system and our distributed operating system networking operating system and real-time operating system, real-time processing operating system. Okay, so what is time sharing operating system? तो मैंने जैसे बोला था स्टूडेंट, हमारे जितने भी ओएस हैं, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट मीन्स ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम हैविंग द सेम कॉन्सेप्ट टेक ऑल द मल्टीपल जॉब्स एट ए टाइम, पुट ऑल देम इनटू ए जॉब क्यू एंड put the jobs from the job queue and put into ready queue by using this state and applying a scheduling algorithm. Choose one job, applying a scheduling algorithm, choose one job, okay, and execute it. Okay, but what is time sharing? Sir, in multi-programming operating system, our main aim is to utilize the CPU properly. CPU का जो यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज करना या यूटिलाइज द CPU properly, that is our main aim of the multi-programming. Okay, but sir, in multi-programming there is a problem of response. Quick response is not there. Okay, in our multi-programming OS we cannot respond quickly, क्योंकि अगर तुम प्रॉपरली CPU को यूटिलाइज करना था तो CPU का एफिशिएंसी तो हो गया, लेकिन जो जितने सारे जॉब्स हैं वो सारे जॉब को रेस्पॉन्ड देते देते बहुत टाइम लग जाता है. ओके, क्योंकि एक जॉब खत्म होगा दूसरा जॉब, एक जॉब खत्म होगा दूसरा जॉब, तो CPU तो एंगेजिंग इन एग्जीक्यूटिंग ऑल द जॉब्स. CPU तो एंगेज कर रहा है सारे जॉब्स को, लेकिन सर जो जॉब्स हैं वो बहुत टाइम तक वेट कर रहे हैं. उनका जो रेस्पॉन्स टाइम, जब CPU उनको रेस्पॉन्ड करता है, एग्जीक्यूट कर लेता है, बहुत टाइम ले लेता है सर. तो वो रेस्पॉन्स टाइम को इंक्रीज करने के लिए वी आर यूजिंग द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. टू मैक्सिमाइज द response time, minimize the response time. response time को minimize करने के लिए, response time को कम करने के लिए we are developing another operating system, that is time sharing operating system. What happened in this operating system, students? In this operating system, the processor time is, one process is there, not multi-processor. One processor is there and the processor time is divided among all the jobs, among all the users. मतलब प्रोसेसर का जो टाइम है, प्रोसेसर जो एग्जीक्यूशन करने के लिए जितना टाइम अवेलेबल है, द प्रोसेसर टाइम इज शेयर, डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड among all the jobs, all the users. So every job get the CPU attention and every job get a response from the CPU. So response time is minimized and also the CPU is utilized properly. So time sharing operating system is used and time sharing operating system is very यूजफुल फॉर एग्जीक्यूटिंग लार्ज जॉब्स, क्योंकि बहुत अगर बड़े बड़े जॉब्स हैं सबको पूरा कंप्लीट करते समय बहुत टाइम लग जाता है सर, तो अपने टाइम को हमने डिवाइड कर दिया है
तो थोड़ा थोड़ा करके हम सबका जॉब एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो जैसे कि आज का दिन खत्म हुआ तो सारे जॉब्स हमारे एक्वेंटेड में आ गए, थोड़ा ही सही लेकिन हमारे पूरे एक्वेंटेड में आ गए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है मल्टी प्रोग्रामिंग। मेरिट्स एडवांटेज means CPU time, sorry, response time is minimized. Every job get the CPU attention. Response time is minimized. Every job get CPU attention. सारे जॉब को CPU अटेंशन मिलता है। एवरी जॉब गेट द CPU अटेंशन। ओके, CPU के अटेंशन मतलब कुछ एग्जीक्यूशन होता ही रहता है। ओके, दीज आर द एडवांटेजेस। बट सर व्हाट आर द डिसएडवांटेज? बिकॉज ऑल ऑफ वी नो दैट जबकि कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो होगा ही। तो डिसएडवांटेज क्या है ना? नॉट रिलायबल, नॉट कंफर्टेबल। देखो सपोज मैं आज के दिन में मुझे बोला गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नोट खत्म करो। उधर सरोज साहब ने बोल दिया DBMS का नोट खत्म करो, दुश्मन साहब ने बोल दिया कि CO का नोट खत्म करो, मेयर साहब ने बोल दिया NSN का नोट खत्म करो। तो तुम्हारा काम है आज के दिन में पूरा नोट खत्म करने के लिए। तो उतने टाइम तुम्हारे पास है नहीं कि तुम एक दिन में 4 नोट खत्म कर सको। तो तुमने क्या किया, सब में आधा थोड़ा करके लिख दिया। तो ठीक है, नोट के लिए तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई कंप्लीट जॉब होता कि वो मुझे सबमिट करना है, सबमिट करने से मुझे मार्क मिलेगा, और ये रूल है कि आधा लिखने से 0 मार्क मिलेगा, आधा लिखने से 0 मार्क मिलेगा। तो तुम सारे आधे अधूरे रिकॉर्ड अगर दोगे तो 9 मार्क। ठीक है, ये एग्जाम्पल तुम्हें रिलायबल नहीं लग रहा है तो एग्जाम्पल ले लो फूड का। आधे घंटे में तुम्हें 4 आइटम बनाने के लिए मैंने बोला, रोटी, दाल, सब्जी, चावल। तो आधे घंटे में तो पॉसिबल नहीं है। तुमने क्या कुकर डाल दिया, गैस ऑन कर दिया, तो इसमें थोड़ा चावल पका दिया, थोड़ा सा रोटी के लिए आटा बेल दिया, देन उसके बाद तुमने सब्जी काट दिया। लेकिन जब आधा घंटा खत्म हो गया, ना ही रोटी रेडी है, ना ही दाल रेडी है, ना ही सब्जी रेडी है, ना ही चावल रेडी है। इससे तो अच्छा होता है कि एक गैस में तुमने चावल डाल दिया, एक गैस में तुमने दाल डाल दिया, और चावल और दाल पक गया आधे घंटे में, तो एटलीस्ट दाल चावल तो खा सकते हैं। ओके, सब्जी नहीं चाहिए सर, सब्जी नहीं चाहिए, लेकिन दाल चावल हो गया। रोटी नहीं चाहिए, दाल चावल तो हो ही गया ना, लाइक दैट। तो ऐसे थोड़े एग्जीक्यूट करोगे तो कोई भी जॉब कंप्लीट नहीं होगा, फाइनली यू गेट द 0 आउटपुट। लेकिन जब कंप्लीट करोगे तो ही कुछ तुम्हें फायदा मिलेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आर एप्लीकेबल। दैट इज टोटली द पार्ट ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द OS। वो OS के ऊपर ये डिपेंड करता है, तो हम उसके ऊपर ये छोड़ देंगे। ओके, गुड। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड OS मतलब सेम सर, ऑल OS आर सेम, मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटिंग सेम, बट सपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्सेप्ट। डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब शेयरिंग कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स योर सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन, योर ऑफिसेस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन, बट हैविंग द सेम डाटा, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम वन कंप्यूटर इज आउट ऑफ ऑर्डर। सपोज बरहमपुर ब्रांच में एक कंप्यूटर में तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, भुवनेश्वर ब्रांच में भी डाटा है, लेकिन बाई चांस तुम्हारा क्या हो, बरहमपुर ब्रांच का कंप्यूटर खराब हो गया और आज ही तुम्हें डाटा चाहिए, प्रिंट आउट करके सबमिट करना है। तो तुम क्या करोगे, बोलोगे भुवनेश्वर ब्रांच के लिए, लेकिन वो जो ऑपरेटर वो बोलेगा मैं क्यों तुम्हारे लिए ओपन करूं, मैं क्यों डाटा सर्च करूं, डाटा प्रिंट आउट करूं, तुम खुद ही करो। लेकिन सर हम कैसे करें, हम बरहमपुर में हैं, सिस्टम भुवनेश्वर में। डोंट वरी, connect the system from Berhampur to Bhubaneswar by using a software TeamViewer or any software. That means the computer support distribute, sharing
डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है डिफरेंट लोकेशन में होने के बावजूद, वो डिफरेंट प्लेस में होने के बावजूद वो डाटा शेयर कर सकता है। ओके, जस्ट यू डोंट नो द आईपी एड्रेस, जस्ट तुम्हें एक आईपी एड्रेस चाहिए। एक बार अगर तुम्हें तुम्हारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस उतना तो वो दे ही देगा, क्योंकि तुम सेम कंपनी में काम करते हो, तो नहीं तो तुम ऊपर ऑफिसर को बोल दोगे, तो आईपी एड्रेस दे देगा। दैट्स इट, इतना ही काफी है हमारे लिए। ओपन द सिस्टम, टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर, टाइप द आईपी एड्रेस ऑफ दैट सिस्टम। ओके, तो सर हमारा सिस्टम खराब हो, जिसमें डाटा है वो खराब हो गया ना, और तो सिस्टम से है ना, लैपटॉप है ना, नहीं तो नेट जोन में जाओ ना, कहीं भी जाके बैठो, सिस्टम ओपन करो, उसका टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर ओपन करो, उसका आईपी एड्रेस टाइप करो, ओपन, उसका जो डेस्कटॉप है वो तुम्हारे सिस्टम में आ गया। अब तुमने कहां डाटा रखा था तुम्हें मालूम है, बस वहां जाओ, डाटा ओपन करो, प्रिंट आउट निकालो या कॉपी पेस्ट करो या कुछ भी। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, तो मेरा ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अभी जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑल आर सपोर्टिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सब वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, इसीलिए दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल। इससे हमें फायदा तो बहुत है, क्योंकि शेयरिंग द डाटा, शेयरिंग द रिसोर्सेस, ओके, शेयरिंग द एक्सपीरियंस, वट एवर वी कैन शेयर इट, सेंड इट, प्रिंट आउट इट, बट डीमेरिट भी है सिक्योरिटी। अगर उसने तुम्हें आईपी एड्रेस दे दिया, तुमने अपना डाटा तो ले लिया, लेकिन साथ साथ उसका डाटा भी तुमने ले लिया, दैट इज सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योर नहीं है, क्योंकि तुमने परमिशन दे दिया ना एक्सेस के लिए, एक्सेस परमिशन इज गिवन, एक्सेस परमिशन इज गिवन ना। अगर तुमने एक बार एक्सेस परमिशन दे दिया तो वो कुछ भी कर सकता है ना, तो उसमें तुम उसे कुछ नहीं बोल सकते, तो दैट इज नॉट सिक्योर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वो तो सर डिफरेंट लोकेशन में, सेम लोकेशन में मुझे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, मुझे डाटा शेयर करना है, मुझे रिसोर्स शेयर करना है, तब मैं क्या करूं? तो अनदर कॉन्सेप्ट इज दैट नेटवर्किंग। तुम कनेक्ट कर लो कंप्यूटर को, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर टू ईच अदर इज नोन एज नेटवर्किंग। दो कंप्यूटर को अपने आप को कनेक्ट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग, उसे हम बोलते हैं नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। तो दो कंप्यूटर को कनेक्ट करो, लेकिन सर ऐसे कनेक्ट नहीं होगा, अगर उसमें नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वी कैन नॉट कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ईच अदर। सो हमें नेटवर्क सॉफ्टवेयर चाहिए। नेटवर्क सॉफ्टवेयर भी सर इंस्टॉल करने से इंस्टॉल नहीं होगा अगर वो नेटवर्किंग सपोर्ट नहीं करता। तो 1995 से पहले जितने भी तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, दे डोंट सपोर्ट द नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, सो वी कैन नॉट यूज द नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। इसीलिए इंटरनेट कॉन्सेप्ट उतना पॉपुलर नहीं था। तो 1990s में जब इंटरनेट कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर होना शुरू हुआ, तब जाके हमने नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना शुरू कर। उससे पहले नेटवर्किंग था, लेकिन तब वास्ट अमाउंट में नेटवर्किंग नहीं था। ओके, तो इसलिए हमने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया that support the networking concept, and that operating system is called networking OS, networking operating system, networking operating system that supports the connection of two or more computers to each other, that supports the sharing of data, that supports the sharing of resources, that supports the शेयरिंग ऑफ फाइल्स, एवरीथिंग। तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल इज योर आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज में एक सर्वर है, एक ही में नेट है। ओके, अगर एक ही में नेट है तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी सब कंप्यूटर को नेट को शेयर कर सकते हैं, लेकिन उस कंप्यूटर को बाकी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम नेट शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो सर उसमें ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा जो कि नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है। तो नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है हमारा विंडोज एनटी। उसके बाद जितने भी ओएस निकला, दैट ऑल आर सपोर्ट्स द नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, बट विंडोज एनटी इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द विंडोज ओएस that supports the networking operating system. That's why it is called Windows Networking Operating System. So the short form is Windows NT, इसीलिए उसे Windows NT बोला जाता है।
Okay, Windows networking operating system that supports the networking concept. तो बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का फैसिलिटी वो सब इधर ऐड हो गया, और बस एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हुआ, दैट इज आवर नेटवर्किंग। ओके, तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरिट तो मैंने बोल दिया, शेयरिंग ऑफ डाटा एडवांटेज, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ फाइल, connection of two computer to each other, sharing the software also. But demerit, now networking required. Networking means connection, जो LAN, WAN, MAN, cable, wire, switch, hub, router, all are expensive, lengthy, complex. तो some demerits are there, but इसे हम demerit के हिसाब से काउंट नहीं करेंगे, तो हम एक्स्ट्रा बर्डन के हिसाब से लेंगे। एक्सपेंसिव होगा लेकिन नेटवर्किंग तो चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो नेटवर्किंग मत करो। तुम्हें कंपलसरी है क्या नेटवर्किंग करने के लिए? नहीं सर, नेटवर्किंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग फैसिलिटी कंपलसरी है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर नेटवर्किंग ओएस। नेक्स्ट इज योर रियल टाइम प्रोसेसिंग ओएस। रियल टाइम प्रोसेसिंग ओएस मतलब रियल जो हम प्रोसेस करते हैं, रियल जो हम जो वर्क करते हैं, दैट इज द रियल वर्ल्ड, जहां वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी प्रोसेस्ड इन ए वेरी क्विक टाइम। जहां तुम्हारा अगर रेस्पॉन्स टाइम क्विक रेस्पॉन्स अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम प्रिंट आउट निकाल रहे हो स्टूडेंट, लेकिन प्रिंट आउट निकालने में अगर 5 मिनट लेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइल कॉपी कर रहे हो, 10 मिनट लेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम टिकट बुक कर रहे हो, अगर तुम्हारा टिकट बुक हो गया लेकिन अपडेट नहीं हुआ तो इमीडिएटली और कोई उसे टिकट को बुक कर लेगा, तो एक ही टिकट को दो बुक कर लेंगे। तुमने टिकट कैंसिल किया, अगर वो अवेलेबल नहीं दिखाएगा तो कस्टमर चला गया तो टिकट वेस्ट हो जाएगा। तो जहां वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा है, जहां रियली हम कुछ वर्क करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, रिसर्च सेंटर, वेदर फोरकास्टिंग, वेपन टेस्टिंग, मिसाइल लॉन्चिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट लॉन्चिंग, in that places where the vast amount of data, real data, date-type data is used rather than your number or alphabet, in that cases we are using real-time processing operating system. कुछ ज्यादा नहीं स्टूडेंट, रियल टाइम प्रोसेस, बस उसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है ज्यादा है, उसका जो मेमोरी कैपेसिटी, स्टोरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है, जिससे वो क्विक रेस्पॉन्स करता है, और क्विक रेस्पॉन्स करने से क्विक रिजल्ट भी मिलता है। क्विक रिजल्ट मिलने से हमें क्विक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। योर एग्जांपल इज दैट फ्लाइट रिजर्वेशन, बिकॉज वी हैव हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट डे per day and hundreds of flight having thousands of tickets having lakhs of customers. So if you are using a general operating system, that is not sufficient to handle this, that is not sufficient to handle this, उसे हैंडल करने के लिए all are not sufficient. So to handle it properly, to handle it with care, to give the output result at a desired time, required time, we are using real time processing operating system. Okay, लेकिन हमारे जनरल सिस्टम में, जनरल डेस्कटॉप में हम रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करते, क्योंकि हमें उतना प्रोसेसिंग स्पीड नहीं चाहिए। अगर उतना प्रोसेसिंग स्पीड नहीं चाहिए तो यूज मत करो, लेकिन जहां चाहिए वहां तो यूज करो, उसके लिए मैंने डेवलप किया। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरिट्स तो तुमने, एडवांटेज तो देखे बहुत सारे हैं। ओके, क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रिजल्ट, क्विक आउटपुट, देन रिलायबल, क्योंकि अगर क्विक आउटपुट है तो रिलायबल होगा ही। ओके, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, क्योंकि प्रोसेसर बढ़ाना, मेमोरी कैपेसिटी बढ़ाना, वो सब एक्सपेंसिव है, एंड नॉट यूज्ड इन जनरल प्लेसेस। जनरल प्लेसेस में हम उसे यूज नहीं कर सकते। स्पेसिफिक पर्पज के लिए स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया जाता है। ओके, सो दीज आर द सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें पता चला स्टूडेंट्स
कि different operating systems are available and we are using these operating system in different places. Okay, so different places में different operating system use करेंगे. This is all about your evolution of operating system and your types of operating system. तो एग्जाम में तुम्हारे ये क्वेश्चन आता है, राइट ऑल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. कभी कभी आता है डिफरेंशिएट बिटवीन टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम बैच प्रोसेसिंग. कभी कभी आता है एक्सप्लेन अबाउट बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग. या कभी कभी आता है सिंपल राइट द इवोल्यूशन ऑपरेटिंग से, उसमें भी तुम्हें सबका थोड़ा लिखना पड़ेगा. और कभी कभी आता है एक्सप्लेन अबाउट मल्टी प्रोग्रामिंग ओनली, एक्सप्लेन अबाउट टाइम शेयरिंग ओनली. तो पूरा डायग्राम करके पूरा मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ऐड करके तुम्हें टाइम शेयरिंग लिखना पड़ेगा. सिर्फ टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग आया तो ठीक है, जितना वो उतना लिखो. लेकिन अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लॉन्ग क्वेश्चन में तो पूरा मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो जनरल कॉन्सेप्ट है एग्जीक्यूटिंग जॉब का, मल्टीपल जॉब्स का, उसके साथ उसका जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है वो ऐड कर दो. देन द लॉन्ग क्वेश्चन इज कंप्लीट. ओके, so this is all about your types of operating system, but apart from this we are having small questions. So if you have any doubt about these students, अगर इसमें तुम्हें कुछ डाउट है तो स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी on my WhatsApp number or when you taking the classes or my number anytime. Okay, so this is all about operating system, but today we are discussing about another question, very important question. If you see the last 5-year question 2 to 3 time or 4 time coming in this exam, that is your function of operating system. Function of operating system. Function of operating system means what are the work done by the operating system. What are the works done by operating system? Sir, process management, file management, memory management, storing, protection, security, all are. So these are the functions of operating system. So different functions are there of operating system. So we will discuss one by one. What is process management? That means all the processes, means the processes are coming from the execution. Processes मतलब jobs are coming from the execution. Jobs are place for the execution. Jobs are executing. So jobs are place, which place for ready state, for waiting state. So all are process related works. How to manage a process, how to execute a process, how to provide the result of the job. That is all the responsibility of operating system. That's why it is called process management. File management means when a file is created, where the file is stored, when the file is retrieved, from where the file is retrieved, open the file, create the file, delete the file, update the file. That means all the file related operations. In the last year, first year, we are discussing about the operations of file. All the operations of files are done by the operating system. Open, close, delete, create, retrieve, update. All the operations are done by the operating system. Memory management. Where the memory is allocated, for which job memory is allocated, when the memory is released, from which job memory is released, why the memory is released.
So all these memory allocate, memory deallocate, memory release, memory provide, all the operations are related to memory to a job that are all done by the operating system. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये प्रॉपरली मैनेज नहीं होगा. Apart from this, storing a data on the device, providing the result or display the result on the output device. Okay, provide the security to the job. Detecting the error of the job, give the compilation and interpretation command to the instruction, execute the instruction, all are done by the operating system. All are the functions of operating system. Means error detection, compile a command or instruction, compile a command, execute a command, display the result, all these works are done by the compiler operating system. क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल होता है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है. नो डाउट कंपाइल है लेकिन इंस्ट्रक्शन तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है. कमांड एग्जीक्यूट होता है, दैट इज डन बाय आवर ओएस. डिस्प्ले होता है रिजल्ट, दैट इज आल्सो कमांडेड बाय ओएस. एरर भी डिटेक्ट होता है, कुछ एरर है इनपुट डिवाइस में या आउटपुट डिवाइस में, दैट आर आल्सो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जो भी ऑपरेशन तुम सोचते हो कि कंप्यूटर करता है, ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल द जॉब्स आर डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट इमेजिन ए सिस्टम, computer system. That's why operating system is the manager or mediator or linker or the interface between the user and the system. Okay, so that's why it is called the heart of the system. If operating system is not there, nothing work will be done. No error detection, no compilation, no execution, no storing, no retrieving, no deleting, nothing will be done without the operating system. If operating system is there, everything is successfully completed. If operating system is not there, we cannot do anything through the system. That's why operating system is required, and these are the functions of operating systems. Okay, so today we are discussing the rest part of the types of operating system and the functions of operating system. In the next video we are going to upload the services of operating system. What are the service provided by the operating system? क्या क्या सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम खुद प्रोवाइड करता है, एंड देन वी डिस्कस ए लॉट. ओके, तो लेकिन डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड एक ही क्वेश्चन रह गया, एंड अदर क्वेश्चंस आर सेपरेट क्वेश्चन बट यूनिट 1 में ही प्रेजेंट है. वो सब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. तो एज यूजुअल गो थ्रू द नोट, read the note and write the note. If you have any doubt, then you can ask me either by WhatsApp or either by while we are taking the class, or by calling to my number. Okay, at any time, but you please inform me and call me and ask the doubt. But always try to read the note properly and write the note properly with your diagram. Okay, सारे मैंने डायग्राम सब एक्सप्लेन कर दिए हैं, वो सब हमें पढ़ना है और समझना है और एग्जाम में लिखना है. ओके, सो टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर योर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग वीडियो, you can ask me any doubt. Okay, and don't forget to subscribe our channel and don't forget to like our channel. So always subscribe and like to our channel, and any doubt ask me. Okay, so thank you friends and goodbye.